Hello students, and welcome back to our class. Today we'll be starting a new chapter 3 from our book Flamingo, Deep Water. It is written by William Douglas. William O. Douglas was renowned for a lot of his work and achievement, mostly in the world of writing and in his legal career. He was also renowned for his friendship with the President Roosevelt. So let's begin with the chapter Deep Water. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny leg, but I subdued my pride and did it. So, in the beginning of the chapter, our writer is introducing us with the time when this incident happened. This was the time when he was 10 or 11 years old and he decided to learn swimming. The place where they resided, there were 2 places where he could learn swimming. One was YMCA pool, Young Men Christian Association pool, and second was Yakima River. Now Yakima River was very dangerous. Treacherous means dangerous. Yakima River was very dangerous, and our writer's mother used to remind him, used to inform him that it's very dangerous. People go there and they drown, they slip, they sink. So it's not a right place to learn swimming. On the other hand, YMCA pool was safe and it was perfect for learning swimming. There were 2 ends of that pool, and the shallow end was merely 2 or 3 feet deep, while the other end was 9 feet deep, but the drop was gradual. It was not sudden. And in order to learn his swimming, our writer got himself a pair of water wings. आपने बच्चों को देखा होगा जब वो लोग स्विमिंग करते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग वाटर पार्क भी जाते हैं तो हम लोग नोटिस करते हैं छोटे बच्चों के हाथों पे ट्यूब लाइक, टायर लाइक, कलरफुल प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, टायर होते हैं छोटे छोटे से, वो पहना देते हैं. Those are water wings. I hated to walk naked into the pool and show my skinny legs. Now he was 10 or 11 years old. Our writer was 10 or 11 years old. He was skinny, he was thin, and he really despised walking naked and showing his slim physique, his skinny legs. But still he wanted to learn swimming, so he subdued his pride and went to the pool. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was no terror in my heart at the overpowering force of the waves. Sorry, I misread the last line. But there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. Now our writer is informing us, telling us that he had a aversion, he had a disliking for water even before he started learning swimming. Aversion matlab dislike. And when did he develop this dislike? जब वो 3 या 4 साल के थे. He was 3 or 4 years old and he went to California beach with his father, and there he was holding his father tightly. He was holding his father very tightly,
स्टिल वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, उन्होंने अपने पापा को बहुत अच्छे से पकड़ रखा था. आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक मी डाउन, उन्होंने बहुत टाइटली अपने पापा को पकड़ रखा था ताकि वो उन वेव्स को फेस कर सकें. बट स्टिल वेव्स इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, उन्होंने उन्हें गिरा दिया, नॉक डाउन कर दिया. एंड उसके बाद बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया था. कोई भी बच्चा भाई जो एकदम से जिसके ऊपर इतना सारा पानी आ जाए, जो सांस ना ले पाए, उसके मन में डर आ जाएगा. बट फादर को पता था कि देयर इज़ नो हार्म, नथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड, सो ही जस्ट लव्ड इट. बट बच्चे के मन में डर आ गया था. My introduction to the YMCA pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. Now, when he finally at the age of 10 or 11 started learning swimming, those अनप्लीजेंट मेमोरीज, कौन सी अनप्लीजेंट मेमोरीज जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी हैं, जब वो 3 या 4 साल के थे और कैलिफोर्नियन बीच पे गए थे और इनके वेव्स ने नॉकआउट कर दिया था, वो अनप्लीजेंट मेमोरीज, वो डर उनके मन में दोबारा से आने लगा. बट ही स्टिल गैदर्ड कॉन्फिडेंस, उन्होंने फिर भी मन बनाया कि नहीं नहीं, मेरे को हिम्मत रखनी है, मेरे को स्विमिंग सीखनी है. और वो अपने नए वाटर विंग्स के साथ, एक 10-11 साल के बच्चे का जो एक्साइटमेंट लेवल होता है उसके साथ वो वहाँ जाते थे. वो और बच्चों को देखते थे कि वो किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह से पानी में जा रहे हैं, और वो उनकी कॉपी करते थे. एपिंग मतलब कॉपी करना. और ऐसा करते हुए ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2 या 3 बार ही हुआ था. और वो फाइनली पानी में अब थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगे थे, और तभी एक मिस एडवेंचर हो गया. अब हम पढ़ेंगे कि क्या मिस एडवेंचर हुआ था. I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still. The tile bottom was as white and clean as the bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. अब एक दिन क्या होता है, हमारे राइटर ही reached there before others. There was no one else. उसके बाद डिस्क्राइब किया गया है कि उस टाइम पे since there was no one else, it was empty, the place was empty. तो किस तरीके का स्विमिंग पूल लग रहा था. इट वॉज क्लीन, इट वॉज स्टिल. ठीक है, द वाटर वॉज स्टिल, द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज द बाथटब. वी गेट टू नो 2 things फ्रॉम दिस. फर्स्टली इट वॉज क्लीन, सेकेंडली इट वॉज नॉट दैट डीप. इतना शैलो लग रहा था, इतना ही डीप था, और ऐसा ही लग रहा था इस एज से जहाँ पे हमारे राइटर बैठे हैं, 2 और 3 फीट डीप वाला जो शेलो एज है, वहाँ पे वो ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई बाथ टब हो. राइट, बाथ टब के कंपैरिजन का पर्पस ही ये है बताने के लिए कि कैसा लग रहा था उस टाइम पे, उस एंगल से एक बच्चे के दिमाग में क्या इमेज थी उस स्विमिंग पूल की. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, बट स्टिल उन्हें डर था कि भाई मैं अकेले नहीं जाऊँगा पानी में. सो ही डिसाइडेड कि मैं वहीं साइड में बैठ जाता हूँ और औरों के आने का वेट करता हूँ. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18-year-old. He had thick hair on his chest. He was beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi skinny, how would you like to be tugged?" अब वहाँ पे it was not long before another boy came in. उन्होंने वहाँ बैठे हुए, हमारे राइटर को वहाँ बैठे हुए बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी पूल साइड, तभी अब बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय केम. ब्रूजर एक्चुअली 2 प्रोमिनेंट वेज में यूज़ होता है. ब्रूजर यूज़ होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो हमारे बच्चे होते हैं, स्पेशली मेल्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनके लिए, क्योंकि उनकी फिज़िक वेल डेवलप्ड होती है. their physique is very different. Okay, and secondly we also use this word with those students, with those boys जो फिज़िक उनकी बहुत वेल डेवलप्ड होती है, बहुत बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, वाइड चेस्ट, इस तरीके की उनकी फिज़िक होती है, एंड उनका वायलेंट नेचर होता है. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है एक्सप्रेशन कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व था, बट पता चलता है ही माइट हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन. कैसे पता चलता है? क्योंकि आगे उन्होंने उसका फिजिकल स्पेसिमेन डिस्क्राइब कर रखा है.
He was beautiful physical specimen with legs and arms showed rippling muscles. ठीक है, तो वो 18 साल का बच्चा रहा होगा मैक्सिमम, और वो ऑलरेडी किसी स्पोर्ट में या स्विमिंग में किसी चीज़ में ऐसे में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा होगा. हिज फिजिक वॉज वेल डेवलप्ड, ही वॉज अ ग्रोन बॉय, and he came up and he said to this tiny boy, our writer, who was merely 10 or 11 year old, that hi skinny, how would you be like to duck माने कैसे डिप लेना पसंद करोगे तुम. With that he picked me up and tossed me into the deep end. अच्छा, हमें वहाँ पे फिजिकल, लास्ट स्लाइड में हमने जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ी उससे हमें ये भी पता चलता है कि वो बच्चा इतना ताकत थी उसमें, वो सो मच कैपेबल कि उसने इन्हें उठा के, हमारे राइटर को उठा के फेंक दिया पानी में. ठीक है, फेंक दिया मतलब इट साउंड्स फनी बट दिस इज समव्हाट द इमेज इज देयर. I landed with that he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened but not yet frightened out of my wits. On the way down I plunged. When my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. अब ये कहने के बाद कि अच्छा तुम कैसे पूल में जाना पसंद करोगे, ये कहते कहते और उन्होंने हमारे राइटर को उठाया और जो डीपर एंड था, जो डीपर एज था स्विमिंग पूल का, उस साइड फेंक दिया. ठीक है, और हमारे जो राइटर थे, जो 10-11 साल का बच्चा था, वो सिटिंग पोजीशन में वहाँ पानी में जाता है एंड उनके मुंह में पानी चला जाता है. सो ही स्वॉलोड अ लॉट ऑफ वाटर एंड ही स्टार्टेड सिंकिंग टुवर्ड्स द बॉटम. वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं. ही वॉज फ्राइटेंड. अब इतना सा बच्चा जैसे ऑलरेडी स्विमिंग नहीं आती और अभी अभी उसने यहाँ आना शुरू किया है, उसे इस तरह से डीपर एज पे वो चला गया है, किसी ने फेंक दिया है, तो डर तो लगेगा ऑब्वियसली. सो ही वॉज फ्राइटेंड बट ही वॉज नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स. मतलब अभी भी उनका दिमाग थोड़ा चल रहा था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने होपलेस हो गए थे वो. ऑन द वे डाउन ही प्लान्ड, कि भैया उन्होंने नीचे जाते वक्त सोचा कि भाई मैं नीचे जाऊंगा, जैसे ही मैं बॉटम टच करूंगा, मेरे पैर बॉटम टच करेंगे, आई विल मेक अ जंप, आई विल कम अप, मैं ऊपर आ जाऊंगा सरफेस पे और वहाँ पे मैं सीधे लेट के और आई विल पेडल माई लेग्स एंड आई विल रीच टू द एज ऑफ द पूल. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my legs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. I imagined I would bob toward the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water, water that had a dirty yellow tinge to it. I grew panicky. I reached up as to grab a rope on. My hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. अब हमारे अब हमारे राइटर अपना एक्सपीरियंस और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो जो 9 फीट वाला एज था, जब मैं वहाँ पे नीचे जा रहा था, नीचे की तरफ ड्राउन हो रहा था, सिंक हो रहा था, डूब रहा था, तो वो 9 फीट की जर्नी ऐसी लगी जैसे वो 90 की हो. कितने फीट नीचे जाना हो रहा उन्हें? 90. ही वॉज सो मच पैनिक्ड एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज फीलिंग लाइक कि इतना लंबा सफ़र है नीचे जाने का, मैं कब नीचे पहुँचूँगा और कब मैं जंप करूँगा. इट फेल्ट लाइक 90 फीट की जर्नी थी. जब तक वो नीचे पहुंचे तब तक ऑलरेडी, क्योंकि ही हैड swallowed अ लॉट ऑफ वाटर, उनके लंग्स वर एकिंग, दे वर अबाउट टू बर्स्ट. ऐसा लग रहा था कि अब बस भैया मेरे लंग्स बर्स्ट हो जाएंगे. बट व्हेन माई फीट हिट माई बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ. बट फिर भी जैसे ही उनके पैर नीचे पड़े, उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटा के एक जंप करी. ठीक है, और उन्होंने क्या उम्मीद की थी भाई, एक 10-11 साल के बच्चे की इमेजिनेशन सोचो. उन्होंने ये सोचा कि मैं जैसे ही जंप करूंगा और वैसे ही मैं एक वुडन कॉक की तरह, एक लकड़ी के टुकड़े की तरह पानी पे ऊपर आ जाऊंगा. बट ऐसा होता नहीं है. जितना स्लोली वो नीचे गए थे उतना ही स्लोली ऊपर आते हैं. आई ओपन माई आई ऑन एंड सॉ नथिंग बट वाटर. और ऊपर आते टाइम उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्हें चारों तरफ कुछ और नहीं दिखा, सिर्फ और सिर्फ पानी. और कैसा था यहाँ पे पानी? डर्टी येलो टेंज. यहाँ पे थोड़ा सा येलोइश था. ठीक है, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था इस पूल के बारे में, इस इंसिडेंट से पहले,
वाटर वॉज स्टिल एंड इट वॉज क्लियर। ठीक है, वो शैलो एंड था। यहाँ पे वाटर कैसा है, डर्टी येलो टिंज का है। ठीक है, अब ये सब सोच देख के और ऊपर नहीं आए थे वो अब तक, ही टर्न वेरी पैनिकी एंड अब पैनिक में उन्होंने कोशिश करनी शुरू की कि भाई मैं किसी चीज़ को पकड़ लूँ, कोई चीज़ जैसे मे बी रोप और लेडर और एनीथिंग जिससे मैं बच सकूँ। बट सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में आया तो क्या, सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में आया तो पानी और कुछ भी नहीं। देन फाइनली माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। फिर धीरे धीरे वो ऊपर आए और उनकी आँखें और नाक थोड़ी सी पानी के बाहर निकली, बट नॉट माई माउथ। इतना पावरफुल नहीं था उनका जंप कि वो पूरी तरह से ऊपर आ पाते। ठीक है, उनका पूरा फेस भी ऊपर आ पाता। तो ऑल्दो उनकी आँख और नाक तो पानी से बाहर निकली, बट फिर भी उनका मुंह पानी के अंदर ही था।